حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن بتائیے گا، آپ کے پاس تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں، جو دنیا نیوز نے اہم جو ہے وہ تمام ثبوت حاصل کیے ہیں، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ڈپٹی کمشنر راجن پور، جو کہ ایکسپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راجن پور بھی کہلاتے ہیں، ان کی حیثیت سے اینٹی کرپشن پنجاب کو 9 اپریل کو ایک ریفرنس بھجوایا گیا تھا۔ اس سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ موزہ کچا میاں واڑی میں جمع بندی کا اصل ریکارڈ جو ہے وہ خود کر لیا گیا ہے، اور اس میں ذمہ داروں کے خلاف اندراج مقدمے کی سفارش کی گئی تھی۔ اور ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رائے منظور نارسن نے 11 اپریل کو ڈی سی راجن پور کی سفارشات کو تسلیم کرتے ہوئے قسمت علی پٹواری، شوکت علی پٹواری اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، اور بقیہ ملزمان کا کردار کا تعین کرنے کی سفارش کی تھی، جو کہ قانون میں درج ہے۔ اسی طرح دوران تفتیش محمد افضل تحصیل رجحان اور محمد وقاص مرید نے لینڈ ریفارم کلرک ڈی سی آفس راجن پور محمد اصغر گرداور عبدالرحمان پٹواری نے اپنے بیانات 161 کے تحت جو ہے وہ ریکارڈ کروائے، اور دوران تفتیش جب کی گئی، جب بیانات ریکارڈ کیے گئے، اس میں یہ معائنہ اور ریکارڈ کو دیکھا گیا تو یہ معاملہ معائنہ کرنے کے بعد یہ سامنے آیا کہ شیرین مہر النساء مزاری نے محکمہ مال کی ملی بجٹ کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے انتقال نمبر 27 مورخہ 1972 کے ذریعے 800 کنال زمین بوگس کمپنی کے نام، جس کا نام ایم ایس پروگریسو فارم لمیٹڈ تھا، انتقال کروایا۔ تاہم فرد پٹواری کے ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نہ تو خریدے جانے والے اور نہ ہی فروخت کرنے والے انگوٹھے یا سائن چیز موجود تھی، اور جو پرسرکار عبدالرحمان پٹواری تھے، انہوں نے کچھ ایسے جو ہے وہ ڈاکومنٹس دوران تفتیش جو ہے وہ ٹیم کے سامنے رکھے، اور یہ بھی بتایا کہ فیڈرل لینڈ کمیشن نے 26 مئی 1975 کو اس انتقال کو بوگس قرار دے دیا تھا۔ اور ریکارڈ سے یہ بھی پایا گیا ہے کہ شیری مزاری نے 1386 زمین کنال زمین جو صوبائی لینڈ کمیشن کے حوالے کی تھی، اور جب اس کو چیک کیا گیا ریکارڈ کو، تو ریکارڈ کے مطابق شیری مزاری کی جانب سے 1386 کنال زمین سے جو صوبائی لینڈ کمیشن کے حوالے کی تھی، اس میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی، کٹنگ کی گئی تھی۔ باقاعدہ یہ ڈاکومنٹس میں مینشن کیا گیا ہے کہ شیری مزاری کے نام سے کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی تھی، کٹنگ کی تھی، جس کے تحت جو ہے 13 اپریل کو شیری مزاری کو بھی ملزمان میں شامل تفتیش کر لیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جو ہے ان کے حوالے سے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کو موصول ہوئے، جس کے تحت جو ہے باقاعدہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا، ان کے حوالے سے جو ہے تمام ثبوت بھی سامنے آئے، اور یہ بھی چیزیں سامنے آئی کہ جو اسسٹنٹ کمشنر رجحان نے جو سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی تھی، وہ 8 اپریل کو تھی، جو کہ ڈی سی کو خط لکھا گیا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو 78,342 کنال اور 13 مرلے انہیریٹنس کا، جو کہ جو ہے سردار عاشق خان مزاری کے نام پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا تھا، اور یہ موزہ میاں والی میں تھا۔ پھر اس کے بعد موٹیشن نمبر 4 جو کہ 7 اگست 1940 کو جو ہے یہ ٹرانسفر کی گئی تھی۔ پھر اسی طرح پراپر تفصیل مینشن کی گئی ہے کہ 12,000 کنال کس طرح ٹرانسفر کی اور کسی کمپنی کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے 9 اپریل کو جو ہے یہ باقاعدہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو خط لکھا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف فوری مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر نے مینشن کیا تھا کہ کون کون سے قسمت علی پٹواری، جب ان سے ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمیں کہاں سے پریشر کیا گیا، اور تمام تر جو ہے وہ ایویڈنس ساتھ لگائے گئے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیس بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو 471 ایکڑ زمین کا پر سرکار کا ریکارڈ غائب پایا گیا ہے۔ پھر اس میں پوری فیملی پر مقدمات درج کیے گئے تھے، اور 200 سے زائد لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، اور لینڈ الاٹ ہونے کے بعد زمین حقوق ملکیت کے طور پر کاشت کی اجازت دی، لیکن پر پٹوار میں 218 480 کنال زمین دیگر ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیے کرنے کا الزام شیری مزاری پر لگایا گیا تھا۔ اور اس کے شیری مزاری کے والد عاشق مزاری لینڈ ریفارم پر بحث سرکار جو ہے وہ ہوئی تھی، اس پر باقاعدہ اے سی پٹواری اور دیگر جو گرداور تھے، انہوں نے ریکارڈ تبدیل کیا تھا، اور شوکت مزاری اور دیگر افراد کو جو ہے اس میں شامل تفتیش کیا گیا اچھا تھا۔ حسن، یہ بھی بتائے گا کہ ٹوٹل کتنی زمین ہے جس کا کلیم دائر کیا گیا تھا؟ دیکھیں، ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہے وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 1386 کنال زمین کے حوالے سے جو ہے وہ ریکارڈ سامنے آیا تھا، جس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے تحقیقات کی تھی۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 72,000 کنال کا جو ہے وہ شروع میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ یہ تمام ریکارڈ سامنے آیا گیا ہے۔ اب جو ہے اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ 1386 کنال زمین کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر تحقیقات ہے، اور 72,000 کنال پورا ان کی فیملی کا کیس تھا، جس کے حوالے سے تحقیقات کی گئی تھی، اور یہ اربوں روپے کی تقریباً زمین بنتی ہے، جو کئی سالوں
सालों से जो है जिन पर ये काबिज थे या जिनके पास भी जो कि सरकार की जमीन थी, अगर सिर्फ इनका किराए की मद में रखा जाए तो एक अच्छी खासी बड़ी तादाद बनती है कि अरबों रुपए बनते हैं जो अगर किराए के बात है जो ये सरकार को जमा करवाते हैं। अगर इसकी जमीन सेल की जाती है तो फिर भी अरबों रुपए की जमीन बनती है कि किस हद तक जो है वो कितनी जमीन आगे ट्रांसफर की जाए। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें तो ये भी बताया गया है कि किस तरह उन्होंने बाकायदा टेम्पर किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड जो दुनिया टीवी को मौसूल हुआ उसके अंदर ये बाकायदा लफ्ज मेंशन किया गया है कि श्री मजारी ने जो है वो बाकायदा फैक्ट और एविडेंस को जो देखेंगे, इन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसमें बाकायदा टेम्पर किया गया है, कटिंग की गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। और दिल्ली में 13 अप्रैल 2022 को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 4 बार श्री मजारी को जो है वो मदऊ किया गया, उनको बुलाया गया कि वो यहाँ पर आके अपना जवाब दे सके, लेकिन इनकी जानिब से कोई भी जवाब जमा ना करवाया जा सका। फिर उसके बाद इनको बाकायदा 27 अप्रैल को भी जो है वो खत लिखा गया था और ये बकाया गया फोन किए गए थे कि वो आके अपना जवाब जमा करवाएं, जिसको उन्होंने कहा था कि आप हमें सियासी जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी का केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर ये कहा गया उस वक्त के डीजे कमीशन ने कि हम ये कानूनी मामला को देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आपके खिलाफ केस बन रहा है और हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इनको बुलाया गया। लेकिन वो इसके बावजूद भी वो इन जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन जो इनकी टीम बनाई गई थी उसमें वो पेश न हुए। श्री मजारी के वालिद अगर देखा जाए सरदार आशिक महमूद खान मजारी जो कि पंजाब के जिला राजनपुर के तहसील जान के बड़े फेडरल लॉर्ड थे, ये हजारों एकड़ जमीन के मालिक भी थे। और जुल्फकार अली भुट्टो ने जब लैंड रिफॉर्म शुरू की और फेडरल लॉर्ड से जमीनें लेकर मजारों और हारियों में तकसीम कर दी तो सरदार आशिक मजारी की जमीन भी तकसीम हो गई थी। और फिर पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म को पता चला कि मौजा कच्चा मियाँ वाली की 40,000 केनाल जमीन की जमाबंदी और फर्ज सरकार दोनों मिली भगत से गायब कर दी गई है। तो ये काम उस जमाने में बहुत आसान हो जाता था। फीडर्स अपने इलाके में पटवारी और तहसीलदार अपनी मर्जी का लगवा लेते थे, इस तरह की ये चीजें सामने आ जाती थी। लेकिन 1971 में महकमा माल जो कि अहम रिकॉर्ड था वो गायब कर दिया गया महकमा माल की जारी से। और उसमें ये बताया जाता है, जो सरकार बताती है कि शायद ये तमाम ऐसे अफराद जो इनका खानदान मुलव्वस था, तो महकमा माल के एहलकार आसिफ मजारी का रिकॉर्ड भी उनके डेरे पर ले आए और जाली रिकॉर्ड बना दिया। ये भी इल्जाम आयद किया जाता है कि इस पर डिप्टी कमिश्नर के जाली मोहरे तक लगाती और अक्सर रिकॉर्ड का संदूक सरदार के वफादार जो पटवारी थे उनके घर में रखवा दिया था। और उस बंदोबस्त का जो मकसद यही था कि छापे से बचा जाए या ऐसा सरकार अगर इसकी तहकीकात करती है वो ना हासिल किया जा सके। ये तो बड़ी परफॉर्मेंस है साबिक डीजीएम की तरफ से पंजाब राय मंसूर नासिर की, तो उन्होंने बहादुरी के साथ 71 तकरीबन 50 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो हासिल करके एक बड़ा केस बनाया जिससे अरबों रुपए का सरकार को नुकसान पहुंच रहा था। और उस टाइम उन्होंने प्रॉपर जासूसी की, अपनी पूरी टीमें लगाई, इस तरह के और भी कई अहम जो है वो रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया और तकरीबन 40,000 केनाल जमीन का नया रिकॉर्ड बना दिया था। वो जो संदूक जब निकाला गया उसमें और भी बहुत सारे बेशुमार केसेस सामने आते हैं। और फिर ये भी चीजें सामने आई है कि मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई और वो जमीनें इन कंपनियों के नाम मुंतकिल कर दी। और फिर वजारी साहब के खिलाफ केस शुरू हुआ और फेडरल लैंड कमीशन ने 1975 में कंपनियों को जाली करार दे दिया था। और यही जो श्री मजारी के हवाले से केस बनाया गया है जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी का नाम मुंतकिल किया था वो जमीन, वो भी यानी हसन खासा पुराना कॉम्प्लिकेटेड केस ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। हसन, ये भी बताएगा मुकदमा जो बनाया गया है श्री मजारी के अलावा इनके अहल खाना से क्या कोई मजीद नाम भी है जिन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा या वो नामजद किए गए हैं? देखिए, अभी तक जो तहकीकात सामने आई है, जो मैथमेटिक अफसर से रिकॉर्ड हासिल किया गया उसमें श्री मजारी समेत कई अफराद के नाम शामिल किए गए हैं। क्योंकि के अंदर जब तफ्तीश या जितने बयान रिकॉर्ड किए गए शिक्षक के, जिसमें पटवारी थे, दरदावर थे, पुराने अफराद थे जो रिटायर हो चुके थे, जब उनको गिरफ्तार करके उनसे तहकीकात शुरू की गई तो कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ये भी बताया जाता है कि पटवारियों ने यहाँ तक इंकशाफ किए कि किस तरीके से जो साबिक जिनका खानदान था किस तरीके से रिकॉर्ड उठाकर उसमें टैंपरिंग की जाती थी, किस तरीके से बाकी जमीनों पर कब्जा किया जाता था और कितने साल से किसी दूसरे फर्ज को वहां पर आने नहीं दिया जाता था और कितने साल तक ये रिकॉर्ड कब्जा जो है वो काबिज किया रखा। और कई ऐसा रिकॉर्ड जो कि उस जिम्नी में था वहां से अगर वो लेते, जो जमाबंदी से वो लेते तो बाकी जो जमीनों को मामला होना था वो भी कब्जे में रखा और कई सरकार तक ना रिकॉर्ड पहुंच पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला सामने आए। अब जब इनकी मजीद तहकीकात की जाएगी तो मजीद के अपराध जो है वो सामने आ सकते हैं। अलबत्ता अगर ये देखा जाए तो तकरीबन ये मुकदमा 50 साल से चलता रहा और ये मामला तो मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी से जो है वो अपने हाथ तक रखा। और खासतौर से जो श्री मजारी, जिनका पूरा नाम श्री मेहरुन निसा मजारी है, जो कि डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, ये
अगर देखा जाए तो इसमें हमने पूरी तहकीकात की, तो ये एंटी करप्शन पंजाब का जो सरकार का रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखा गया। तो पंजाब हुकूमत से तो ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, क्योंकि जब फेडरल लैंड कमीशन जब किसी चीज को गलत करार दे दे तो फिर उसमें कोई चीज रह नहीं जाती, और उसके बाद जब आप बंदी का रिकॉर्ड हो और वो जो कि रेवेन्यू से मुतालिक रिकॉर्ड हो, जब आप वो किसी दूसरी जगह उठा के गायब करवा दे तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। यानी आप सरकार का रिकॉर्ड उठाकर गायब करवा देना और उसको अपने कब्जे में ले लेना, इससे बड़ा क्राइम तो और हो नहीं सकता। यानी सरकारी इमलाक को जितना नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज होता है, इसी तरह सरकारी रिकॉर्ड अगर टेम्पर कर दिया जाए या गायब कर दिया जाए और फिर उसमें कटिंग कर दी जाए तो ये खतरनाक जो है वो मुकदमा जो है वो देखा जाता है। इसी तरह जो है साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब रायमुल नासर ने जो है वो एक जबरदस्त केस बनाया और इससे बाकायदा उस वक्त उस्मान बुज़दार को भी ब्रीफ किया गया था। याद है कि जब साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब थे तो उन्होंने उस्मान बुज़दार के सामने ये केस रखा था, उनको बताया था, तो उन्होंने उस पर ये कहा था कि मामला को देखा जाएगा, आप इसके हवाले से कमेटी बनाए। और 10 अप्रैल को बाकायदा तौर पे इसमें सेक्रेटरी कानून पंजाब के अहमद रजा सरवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सईद अली मुर्तजा और डीजी एंटी करप्शन पंजाब रायमुल नासर, तीनों ने इजलास करके प्रॉपर इसके तमाम जो है वो नकात को देखा गया, कानूनी मामला को देखा गया, आईनी तरीके से तमाम रिकॉर्ड को देखा गया। फिर उसके बाद पूरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी, क्योंकि जब केस बनेगा तो फिर उसमें किसी भी तरीके से उसमें वो जाया नहीं किया जा सकता। एक बड़ा केस था जिसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा फिर 13 अप्रैल को श्री मजारी को दिल्ली में उनको जो है वो शामिल कर दिया गया था। अच्छा हसन, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि अब जब श्री मज़ारी को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, जो इत्तलात हैं, तो यहाँ लाकर उन्हें क्या कानूनी तरीकाकार है जिसे फॉलो किया जाएगा? देखिए यहाँ पर जितना आप देखें तो पहले एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की तकरीबन कुछ अर्सा पहले गिरफ्तार की गई थी और उससे पहले रावलपिंडी रिंग और कैटल के खातून को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह जितने खातून है इनको गिरफ्तार करने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पे बाकायदा एंटी करप्शन पंजाब में एक खवातीन के लिए स्पेशल सेल जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर जो है जो कानून के मुताबिक जो चीजें हैं उसके मुताबिक वो सेल के अंदर हर तरह की चीजें मौजूद होती हैं, शायद कूलर भी वहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा और कल को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। जो एंटी करप्शन की अदालत है उनके सामने ये केस रखा जाएगा और उनसे जो है रिमांड हासिल किया जाएगा। फिर श्री मजारी के सामने रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनसे तफ्तीश की जाएगी और इस तफ्तीशी टीम के अंदर 2 खवातीन जो है वो हर सूरत शामिल होती हैं और बाकी ऑफिसर जो है शामिल होते हैं। और ये भी मुमकिन है कि जब कोरोना चल रहा था तो उस पर एक टीम बनाई गई थी कि वीडियो लिंक के जरिए उनको बैठा के जो ऑफिसर है वो वहाँ पर पहुंचे और काफी सारा फासला भी रखा जाता था। लेकिन अब चूंकि वो ऐसी वो सिचुएशन नहीं है, काफी हालात बेहतर हो चुके हैं, तो अब तमाम ऑफिसर्स इनको सामने बैठा के इनसे तफ्तीश करेंगे, इनके सामने तमाम एविडेंस रखेंगे, इनके सामने इनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और मजीद भी क्योंकि जब इनसे तफ्तीश की जाएगी तो मजीद ऐसे अफराद के नाम भी सामने आ सकते हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया या इनसे मुल्क जितने जमीनें बनती हैं उनके हवाले से भी मामला सामने आ सकता है। देखिए जब जमाबंदी ही आपने गायब कर दी, रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, तो उसमें बाकी ऐसे अफराद जिनका उनमें रिकॉर्ड शामिल होगा तो उनको कितना जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही चीज की तो साका और मौजूदा हुकूमत इसी चीज पे बात करती रहती थी कि सही ऐसा रिकॉर्ड सरकारी स्कीम का अरबों रुपए का रिकॉर्ड ही सरकार के पास पहुंच गई है। यही वही रिकॉर्ड है जो हासिल किया एंटी करप्शन पंजाब ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें तफसीलन इस मुकदमे के हवाले से आगाह कर रहे थे।